It is my privilege to introduce Dr. Vikas Arora sir. Dr. Vikas Arora is motivational speaker, corporate trainer and life coach of international repute. He has imparted seminars, trainings to more than 1.25 lakh people from all facets of life in India abroad. His seminars and workshops are well known for their high quality of content, backed by his unique and entertainment style of delivery. He has traveled more than 16 countries, including USA, UK, Australia, etc. several times. He is having professional experience of 23 years and conducted more than 1,000 seminars, workshops till date. He has also authored 4 books on business communication, soft skills, motivation yourself, and HRM. Dr. Vikas Arora firmly believes that essential element of personal growth is self-realization. His mission is to enrich maximum number of lives and let them realize their true potential. Dr. Vikas Arora believes that being positive and inspiring can bring a great change in human lives. So let's welcome him with a big round of applause. Hello, hello, hello. My voice is audible at the back? थोड़ी सी कम, ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा चला दो, हाँ खोलो, थोड़ी कम आवाज. He's an inspiring motivational speaker and corporate trainer. He has conducted training programs for the corporate sector, faculties and students community all over India and abroad. His seminars and workshops are well known for their high-quality content packed by his unique and entertaining style of delivery. Dr. Vikas is a management graduate with distinction from Institute of Management and Research, New Delhi. He started his career in international marketing and possesses worldwide exposure. He managed to travel more than 14 countries several times like USA, UK, Singapore, Australia and UAE. His major clients are Manik Shinvangsirich, Labyrinth Pharmaceuticals, SBI Bank, Best Foods, United India Insurance, Indian Oil Corporation Limited and many more. His knowledge and experience strengthens his belief that essential element of personal growth is self-realization. He is having more than 24 years of experience. Till date he has trained more than 1,50,000 students, faculty and professionals. I'll request everyone to please stand up for a mantra chanting before we start. Kindly fold your hands. Ready? Close your eyes. Ready? Please be with me. Om Sena Bhavatu Sena Bhunaktu Saviryam Karvavahe Tejasvina Tamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much. Namaste to all. Namaste. Namaste. You can do namaste to your right and left also.
Don't feel shy in saying namaste. Once again, namaste to all. इबादतों की तरह, इबादत कहते हैं पूजा को, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। सबसे पहले महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं सलाम करता हूं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस प्रोग्राम की कुछ प्री कंडीशंस हैं बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट, और वो प्री कंडीशन है फोन रहेगा साइलेंट मोड पे और चेहरा रहेगा स्माइलिंग मोड पे। इज इट ओके? थैंक यू। देखिए, कभी भी ताली बजाने में शर्म मत करें। बताता हूं क्यों। जितनी आप ताली दूसरों के लिए बजाएंगे, उतनी ताली जिंदगी में आपके लिए बजेगी। और कुछ लोग तो इतनी ढीली ताली बजाते हैं, इससे अच्छा ना ही बजाएं। और आप कितने अलर्ट बैठे हुए, ये भी यहां से चेक हो सकता है। नहीं, वो तो मैं भी चेक करूंगा। ओके, सो मैं तीन बार ताली बजाऊंगा, आप मेरे साथ बजाएंगे, और लेट अस सी कि आप कितने अलर्ट बैठे हुए हैं। रेडी? मेरे साथ। मैंने कहा था 3 बार, तीन बार। So it means that you are not alert, you are over alert. So अब इस बार ताली मैं बजाऊंगा आपके लिए। Big round of applause for all of you. Such a wonderful audience, vibrant audience. I am feeling vibrance from you people. Great to meet you all. Now I'm telling you, this is going to be a 1-hour motivational program, but for many people it can be a life-changing program also. ध्यान से सुनिएगा। Give me this 45-50 minutes, coming 45-50 minutes to me, and then you will realize why I was saying this thing to you. Listen carefully, चाहे आप पीछे बैठे हैं, चाहे आप आगे बैठे हैं, but listen carefully. ध्यान कहीं पर भी हो, ध्यान यहाँ पे बना के रखिएगा। मैंने क्यों कहा था मैं पीछे वाला से मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है आगे वाले भाई, पीछे वाले जमाई। भाई लोग तो आराम से सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, पीछे वाले तो फिर जमाई कुछ भी। ओके, सो क्वेश्चन इज, देखिए, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो आपके साथ होंगी, जो आपको करनी है या नहीं करनी है, क्या ध्यान रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। लिसन वेरी केयरफुली। हमारी लाइफ की ब्यूटी इसी में छुपी हुई है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि लाइफ की ब्यूटी किसे कहते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, यस, नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। Usain Bolt, we all know, we have heard this name, Usain Bolt. 8 times he won gold medal in Olympics. 8 times. He is a world-renowned sprinter. 30 seconds Usain Bolt जब दौड़ते हैं और गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो जर्नलिस्ट ने उसे कहा कि Usain, you are very lucky today. It's a very lucky day for you. See, 30 seconds and lot of money is pouring in your banks. कितना पैसा तुमने कमा लिया यार, 30 सेकंड में तुम कितना पैसा कमा लेते हो। हुसैन बोल्ट
कि आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने बड़ा इमोशनल हो गए। उन्होंने बोला, देखो तुम ये 30 सेकंड की जो बात कर रहे हो ना, मेरी जिंदगी के 20 साल लग गए प्रैक्टिस करने में, तब जाके मैं 30 सेकंड में रेस जीत पाता हूं, तब जाके इतने पैसे आते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, देयर इज ऑन द रोड ऑफ सक्सेस देयर इज नो शॉर्टकट। प्लीज नोट दिस थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट ऑन द रोड ऑफ सक्सेस। मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। भागवत गीता में क्लियरली ये बात कही गई है, कर्मों से बचा नहीं जा सकता। One has to work very hard in his life to achieve success. It's one of the beautiful example of Usain Bolt. Second is, as we grow, our ego grows. ये problems आने वाली हैं, सबके साथ आती हैं। We have to be very conscious because एक चीज एक व्यक्ति को जिंदगी के पड़ाव के 30 साल बाद पता लगती है, एक व्यक्ति को 30 साल पहले पता लगती है, तो उसकी जिंदगी बहुत बेटर हो सकती है। अहम ने एक वहम पाल रखा है कि मैंने ही सब कुछ संभाल रखा है। You got it? The point here is, ego grows when we grow. जितना हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, ईगो हमारी और बढ़ती चली जाएगी। और जहां ईगो आ गई हमारे अंदर, समझ लेना वहां पे हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया लाइफ का। And it is a natural thing. It is very, very natural. बस इतनी सी बात समुद्र को खल गई कि एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई। जब घमंड आता है तब ऐसी सोच आती है, ऐ खुदा आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं साफ किया तो तू नजर आया। So be aware of this destructive thing. बड़े बड़े लोग खत्म हो गए जिसमें ईगो आ गई, और ईगो हमारी बढ़ती चली जाती है। छोटे बच्चों में कभी ईगो नहीं होती, बड़ों में इतनी ईगो होती है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते, छोटी सी बात को भी वो टॉलरेट नहीं कर पाते। So your life is going to start in the coming years or days. You need to be very careful. These are the cautions which I am telling you. पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था, वर्क हार्ड, नो शॉर्टकट्स, बी ईगोलेस। दीज आर द मंत्रास आई एम टेलिंग यू। जिस दिन हमारी जिंदगी में आ गया, समझ लेना उस दिन हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर लूज होप। In life there will be moments when you will feel I'm nowhere now. ये जिंदगी के पड़ाव आते हैं, कभी हमें लगता है कि हम अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं होगा। There are times when we lose hope, but the beauty of life is, ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं इसकी ब्यूटी क्या है? क्या नाम है आपका बेटे? व्हाइट शर्ट है? आयुष, बता दूं ब्यूटी ऑफ लाइफ? शैल आई टेल? आप कहोगे तो बताऊंगा, बता दूं? ओके, द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज, सुन रहे हो ना आयुष? बुझ जाए क्षमा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। निराश मत होना, इरादे मत बदलना, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। दिस इज ब्यूटी ऑफ लाइफ। Never lose hope. Life can change any time. And the beautiful example is of Gomai Irani. 43 years की एज में इनको ब्रेक मिला. He was struggling till 43 years. Nobody was knowing him. But after 43 years of age, after getting success, he is now a celebrity status. Everybody knows him. So life कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता है. So don't lose heart.
This is the third caution. Fourth one is, it is the biggest. It is the biggest. The power of blessing. कहाँ है मेरा दोस्त आयुष? Ayush, do you believe in the power of blessing? Do you believe it? What I'm telling you is happening. These things are happening, my dear friends. These things are happening. That's why I'm telling you. I'm not telling you like this. These things are happening. There's a power of blessing. You will be successful. You will go abroad. You will earn a lot of money. You will have big car, big house. But remember one thing. एक बात मेरी दोस्त मेरी जिंदगी में याद रखना. कुछ भी बड़े से बड़ा काम कर लेना, बड़े से बड़ी कामयाबी हासिल कर लोगे तुम, लेकिन अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स को अपने साथ रखना. सब कुछ होगा, अगर वो नहीं होगा ना तो समझ लेना जिंदगी में कुछ नहीं पाया. कुछ नहीं पाया, ये सोच लेना. और मैं आपको अब इसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है. द बेस्ट गिफ्ट यू रिसीव इन योर लाइफ टाइम इज द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स. दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू आर गोइंग टू रिसीव थ्रू आउट योर लाइफ. और आपको लगता होगा मैं ऐसे ही कह रहा हूं, आपको लगता होगा मैं ऐसे ही कह रहा हूं, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं कह रहा. ये स्लाइड खुद बहुत कुछ बोल रही है. मैंने कहा ना, गिव मी सम टाइम, आई विल टेल यू व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज सक्सेस. बाप धूप में जलता है, मां चूल्हे पे जलती है, तब जाके एक औलाद पलती है. जो आज आप अपने पेरेंट्स के फेसेस देखते हैं ना, उनके फेसेस ऐसे नहीं थे. उनकी शक्लें बदल गई अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनको कामयाब करने में. इतनी तपस्या, इतना बड़ा सैक्रिफाइस है उनका, मतलब वर्ड्स आर नॉट इनफ. ऑलवेज कीप योर पेरेंट्स हैप्पी. जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में रब बसते हैं. I would like to show one video here. नकुल जी प्लीज, एक वीडियो है, अगर आप ध्यान से सुने तो इसके बहुत बड़े मायने हैं. लेट अस ट्राई. इसको भी क्लिक करेंगे, चलेगा. ये नीचे देखना, क्लिक करके नहीं सेकंड वाले. अन्ना, आपके फादर की जब तबीयत बहुत खराब थी, आपने सब कुछ छोड़ के डेडिकेटेडली, आप बिल्कुल पूरा समय आपने उनको दिया था. आप कुछ शेयर करना चाहोगे अन्ना प्लीज? एब्सोल्युटली. आई थिंक 4 साल मेरी जिंदगी के कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला. आई डिडंट वर्क एट ऑल. मेरी जिंदगी के 4 सबसे खूबसूरत समय. और इसलिए जब भी ऐसे रिलेशनशिप मैं देखता हूँ, आंखें हमेशा भर आती है, क्योंकि दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम. क्योंकि वो इतना सब कुछ हमारे लिए करते हैं, इट्स अनबिलीवेबल. और हमेशा ये माना जाता है कि यार बाप बेटे में हमेशा वो डिफरेंसेस होंगे, वो जनरेशन गैप आता है. इट इज नेवर दैट वे. एक बाप को कभी अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि वो जिंदगी के स्ट्रगल में रह जाते हैं हमेशा. और खास करके जब बच्चे पैदा होते हैं तब आपको लगता है कि नहीं यार, बहुत मेहनत करनी चाहिए और उनके लिए अपनी जिंदगी एस्टैब्लिश करनी चाहिए. जब आप कुछ अचीव करते हो तो बच्चों को पढ़ने का टाइम आ जाता है, वो बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी जिंदगी में अपनी फैमिली आ जाती है. सो इट्स ऑलवेज दैट गैप. बट आई थिंक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गैप को ब्रिज करें और वो टाइम अपने माँ बाप के लिए दे. आई
आई थिंक फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो इंटरनली ऐसा है, इंटरनली वैसा है कि उनकी सैक्रिफाइस इतनी होती है, इट्स अनबिलीवेबल। इसलिए हम सो इट्स जस्ट टू ब्यूटिफुल, दिस होल father son mother son relationship. So to all of you there, अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालिएगा और टाइम कोशिश कीजिएगा। हम सब बिजी है कि क्या हम एक मील तो उनके साथ खा पाते हैं कि नहीं, हॉलीडेज कहीं ना कहीं उनके साथ बिताते हैं कि नहीं। आई थिंक दीज आर द ब्यूटिफुल मोमेंट्स वी शुड चेरिश। It's okay. See, generally we express our feelings to our mothers. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि फादर का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है। और आज एक काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे? एक काम आप ये करेंगे कि आज आप घर जाकर, चाहे डॉटर है चाहे सन है, अपने फादर से गले मिलेंगे। इज इट और नॉट? यू विल डू इट और नॉट? मेरे दोस्त, ये तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। इसमें अच्छी चीजों के लिए सोचा नहीं जाता, अच्छी चीजों को करा जाता है। Never think twice if the thing is good. Go ahead and do it. So you'll do it? Yes, sir. Good. That should be the spirit. और जो हम करते हैं दूसरों को कहते हैं वो भी बताता हूँ, और जो खुद के लिए करना है वो भी बताता हूँ। Now I am going to tell you the golden mantras. 4 चीजों के लिए से मैंने आपको कॉशन कर दिया है कि ध्यान रखना, क्योंकि दुनिया ये गलतियां कर रही है। बहुत बड़े एनालिसिस के बाद यहां पर कोई चीज लेके आता हूं। जनरली मैं यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं लाता जो मुझे खुद कन्विंस नहीं करती। आपको लग रहा होगा कि ये भी एक कोई होगी चीज, लेकिन इट इज द एनालिसिस व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज, वेयर आर द पीपल स्ट्रक। जिंदगियां कहां रुक रही हैं, क्यों कामयाब नहीं हो पा रही, क्यों कामयाबी के पास जाकर वापस आ रही है। One needs to understand these things. Now I'm going to tell you certain golden mantras. Ready? यार आवाज तो जबरदस्त होनी चाहिए। मैंने तभी पहले ही चेक कर लिया था, रियलिटी चेक किया आप कितने अलर्ट बैठे हुए हैं, बट आप, मुझे लगता है कि थोड़ा, हाँ, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस वीडियो में खो गए हैं। हाँ, उसको हम थोड़ा पॉजिटिव वर्ड यूज कर सकते हैं, उसके लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन आपको टच हो गया है कोई चीज की, यार नहीं, बात तो सही है कि मैं अपने माँ बाप को कितना टाइम दे रहा हूँ या उनको कितना मैं उनके पास बैठता हूँ। उन्होंने तो मेरी सारी जिंदगी लगा दी मेरे लिए, और आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट शुड आई डू। ओके, तो हम आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा माहौल को दोबारा वाइब्रेंट करेंगे, और इसके लिए आप मेरे साथ थोड़ा पावर क्लैप करेंगे। पावर क्लैप हम कहते हैं जब हम दोनों हाथों को मिला के क्लैप करते हैं। थोड़ा एनर्जी क्रिएट करना हॉल में जरूरी है। रेडी? ओके, रेडी? यस, कम ऑन विद मी। जोर से अपने लिए कर लिया, अपने लिए। कम ऑन, रेस्ट, वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। कुछ लोग देख रहे हैं कि कैसे ताली बजती है। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, कीप इट अप। कुछ चीजें हमें अपने लिए करनी होती हैं। हम दूसरों को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना बहुत जरूरी है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस?
वेरी फ्यू। आप यहाँ के देखिए, देयर आर वेरी फ्यू हैंड्स। अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना। हाउ मेनी ऑफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस? हेल्थ कॉन्शियस मीन्स इन द मॉर्निंग यू आर डूइंग वर्कआउट्स, जॉगिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, yoga. How many of you are doing it? Gymming also, you youth. Very good. It is on the top. Health is on the top. It's going to hit hard. Mind my words. It's going to hit hard. ये कभी अचानक से आएगी और तहस नहस कर देगी, सारी कामयाबी, सारे सपनों को साइड पे लगा देगी अगर ये हेल्थ सेट ना। 4 दिन बुखार आता, लगता है यार जिंदगी खत्म हो गई, रुक गई जिंदगी। These are the mandatory things. We need to understand this thing. लेना है इस शरीर से, लेना है इस शरीर से अगर लंबे समय तक काम, तो करना होगा प्राणायाम। You got it? This is very very important, very important. और अभी चेक कर लेते हैं कि कहां पर हैं चीजें। Now with me, do with me. एक हाथ यहां रखिए, सीधा बैठिए। सबसे पहले सीधा बैठिए, एक हाथ यहां रखिए और एक हाथ हार्ट के पास रखिए। डू लाइक दिस, सीधा बैठिए तभी हो पाएगा। अभी चेक कर लेते हैं। देखिए यही ब्यूटी है। कुछ लोगों को मजाक लगता है, कुछ लोगों को लगता है यार जिंदगी बदल गई मेरी। प्लीज ऐसे करिए, दोनों हाथ सीधा बैठिए, ठीक है। नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ नहीं करना, सीधा बैठना है, एक हाथ इधर रखना है, एक हाथ इधर रखना है और फोकस ऑन योर ब्रेथ। सिर्फ फोकस ऑन योर ब्रेथ, सांस पे फोकस करिए। सीधा बैठिए और एक हाथ बैली पे रखिए, एक हाथ हार्ट के पास रखिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सिट डाउन। ये मेरा दोस्त रेड टी शर्ट वाला सबसे सही कर रहा है, इसको मैं अभी यहां बुलाऊंगा। हाँ मैं बुलाऊंगा, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, ये मेरा काम है। जो ठीक से नहीं करेगा उसको मैं यहां बुला के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां करिए। फोकस ऑन योर ब्रेथ, कीप हैंड्स लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू। आई एम गोइंग टू आस्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू। विच पार्ट इज मूविंग मोर? हार्ट पार्ट और दिस पार्ट, बेली पार्ट? हार्ट पार्ट naturally. Which part is moving more? Okay, now listen carefully. दो वर्जन्स आ रहे हैं, few are saying heart and few are saying belly. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने करा ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं लगा कि सांस आ भी रही है कि नहीं आ रही, अपने आप ही आ रही है, जा रही है, कहां से आ रही कुछ नहीं पता। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। Belly breathing is the right way of breathing. Belly breathing is the right way of breathing. If you are breathing from here, your breathing pattern is not right, and all the diseases starts from the breathing breathing part. In corporate trainings, we give them corporate breath work program, जहां पे ये देखा गया है कि 80-90% लोग ब्रीदिंग ही गलत ले रहे हैं, और वो ब्रीदिंग गलत नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ब्रीदिंग पैटर्न इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। जब हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं होता तब बीमारियां हमारे को घेर लेती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वी नीड। हमारे को ध्यान ही नहीं है कि सांस कहां से कैसे ले रहे हैं। तो मैंने आज आपको एक बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग बात बता दी है कि आप जब अकेले में बैठे हो तो ये चेक करते रहा करो और ट्राई टू हैव डीप ब्रीदिंग। उससे क्या होगा, डीप ब्रीदिंग से धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बेली ब्रीदिंग तक आ जाएगी। ट्राई टू हैव डीप ब्रीदिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं, इट इज ऑन द टॉप। हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो। कोई व्यक्ति ले लीजिए जिसने बहुत लंबी पारी खेली है, उसने सबसे पहले अपनी हेल्थ को कवर किया है
और एक बड़ी अच्छी बात यह है, जो अपनी हेल्थ को सेट नहीं रख सकता, कंट्रोल नहीं रख सकता, वो दूसरों पे क्या कंट्रोल करेगा? चाहे वो मैनेजमेंट कंट्रोल हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो कोई भी हो। अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करना, अपने सांसों पे कंट्रोल करना, अपने विचारों पे कंट्रोल करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सोचिएगा कि अब मैं दूसरों पे कंट्रोल कर सकता हूं। नेक्स्ट इज, ये बहुत जबरदस्त है, ये बताएगा कि आप अभी किस मोड माइंडसेट में बैठे हुए हैं। यहां से पता लग रहा है कि आप किस माइंडसेट में घूम रहे हैं। अभी चीजें बदलेंगी माय डियर फ्रेंड्स। आज आप इसको ध्यान से सुन लो, ये बीज है, बीज कब ग्रो कर जाएंगे, कब आपके काम आ जाएंगे, यू ऑल्सो डोंट नो। जस्ट लिसन एट द मोमेंट, क्योंकि जब ये एज में बंदा कहता है यार मुझे, आई एम द किंग, आई डोंट वांट एनीबॉडी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बट स्टेज विल कम व्हेन यू विल रिक्वायर दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर द निचोड़ ऑफ एवरीथिंग। यू आर द लकी वन, you're the lucky people. Why I'm saying you lucky? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, रोज बारिश नहीं होती, रोज संडे नहीं होता, और रोज ऐसे सेमिनार भी नहीं होते। और इससे भी ऊपर कह रहा हूं, और हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको मौका मिले अटेंड करने का। यू आर द लकी पीपल। आपके दोस्त भी बाहर आए हुए होंगे, कॉलेज आए होंगे, जो नहीं आए चलो उसकी तो बात छोड़िए, कॉलेज आए होंगे, बट वो इधर उधर बिजी होंगे, उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ चल रहा है कुछ। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। एवरीथिंग विल हैपन इन लाइफ, बट इफ यू वांट टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आइडेंटिफाई योर पैशन। सब कुछ होगा जिंदगी में, समय चलता है, जिंदगी चलती है, सब चीजें होती है, लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने पैशन को ढूंढ लीजिए। अब मैं 3 बड़े एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी बड़ा व्यक्ति, बड़ा काम जिसने बड़ा काम किया, वो बड़ा व्यक्ति बना, और बड़ा व्यक्ति जो बना है उसके पीछे उसका जुनून था, उसकी सनक थी, उसका पागलपन था उस चीज को करने के लिए। बुला चौधरी अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, वर्ल्ड के 5 चैनल्स को, C चैनल्स को क्रॉस किया। शी इज इंडियन, बुला चौधरी, only because of our passion to swim। गोल कुछ दिखता ही नहीं है, पोल्स ही नहीं है, तैरना तैरना तैरना, ओनली तैरना। नेक्स्ट इज अरुणिमा सिन्हा, एक आर्टिफिशियल पैर नहीं है, पैर नहीं, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया हुआ है। शी इज अ माउंट एवरेस्ट कॉन्करर, नॉट ओनली माउंट एवरेस्ट, शी हैज कॉन्कर्ड 5 पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक्स। इंसान सोच भी नहीं सकता, एंड दे आर डूइंग इट, एंड दे आर द लाइव एग्जाम्पल्स। मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि डॉक्टर साहब कभी मौका मिले तो इनको आप यहां पर बुलाइएगा। जबरदस्त लोग हैं ये लोग, जबरदस्त। इनकी प्रेजेंस इस धरती को पवित्र कर देगी। इनकी प्रेजेंस, ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने पूरी वर्ल्ड को एक एंगल दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखिए अगर हम कर सकते हैं तो आप तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। दशरथ माझी, हम कहते हैं अरे यार तुम अकेले क्या करोगे, तुम क्या पहाड़ तोड़ दोगे? दशरथ माझी ने अकेले पहाड़ तोड़ दिया। ये दिस द पावर ऑफ पैशन, पावर ऑफ पैशन। आयुष्मान, आयुष, पावर ऑफ पैशन है ना तुम में? जुनून है तुम में कुछ कर दिखाने का? आप में से कितने लोग हैं जिनमें जुनून है कुछ कर दिखाने का? सबसे पहले सर ने हाथ खड़ा किया। अरे यार आप मेरे दोस्त, आप लोग सोच रहे हो यार, कुछ लोग तो आशीर्वाद दे रहे हैं। है जुनून कुछ कर दिखाने का? अरे यार हाथ तो खड़ा कर दो यार। रेड टी शर्ट, हाथ खड़ा कर दे यार। अब सुनो, जुनून की बात आई है तो सुनो। चट्टानों को चटका दे, चट्टानों को चटका दे, रवानी उसको कहते हैं। जो दिल पे नक्श हो जाए, कहानी उसको कहते हैं। नहीं मालूम तुमको, नहीं मालूम तुमको, करिश्मा किसको कहते हैं। हिला दे जो हिमालय को, जवानी जोश उसको कहते हैं। देखिए, सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। मेरे साथ ऐसा करिए, ऐसे करिए, ऐसे। जवानी जोश उसको कहते हैं। कमान रेज, ऐसे करिए, ऐसे। जवानी जोश उसको कहते हैं।
यार आवाज देखो, यू आर द रोल मॉडल ऑफ डेली यंगस्टर्स। हाउ इज द जोश? यार लड़कियों की आवाज ज्यादा आ रही है, लड़के कहां गए? हाउ इज द जोश? ग्रेट यार, ग्रेट, थैंक यू। जिस दिन ये दो चीजें मिल जाएंगी समझ लेना, उस दिन चीजें मूव कर जाएंगी बहुत आगे तक। ये दो चीजें, यू विल रॉक, कॉन्फिडेंस एंड एफर्ट्स। देखिए, कॉन्फिडेंस की बात करें, सलमान खान से पूछा, सलमान भाई आपकी नई पिक्चर आती है, जनरली वो ईद को आती है और ईद वाले दिन छुट्टी होती है, तो आपकी जब भी कोई नई पिक्चर आती है तो आप छुट्टी वाले दिन पिक्चर रिलीज करते हैं। कह रहे हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, जिस दिन मेरी पिक्चर आती है उस दिन छुट्टी होती है। यही बात जब रजनीकांत से पूछी गई, रजनीकांत सर जब आपकी पिक्चर आती है तो छुट्टी नहीं होती है। रजनीकांत सर ने कहा कि जब मेरी पिक्चर आती है तो छुट्टी खुद ब खुद हो जाती है। See the beauty of answer, that is confidence, that is confidence। और efforts के ऊपर देखिए जिग जैगलर ने क्या कहा है, कहते winning is not everything but the efforts to win is। कहते winning is ठीक है, आप जीत गए, it was your day, आप जीत गए, but जो आपने efforts डाले that is the real thing। कोशिश कितनी करी आप? जितने भी महान कार्य होते हैं पहले अपना इंसान कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है और फिर उसके बाद उसमें एफर्ट्स डालता है। जब ये दो चीजें जाती हैं तब बन जाती है बात। क्या बात बन जाती है बता दूं? बता दूं? सर कहेंगे तो बता दूंगा। सर बता दूं? जिंदगी एक चुनौती है, जिंदगी एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो व सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। You got it? Okay, so you all are ready to make efforts to make this group of institutions the best in the Delhi? यार हमारा भी कोई फर्ज बनता है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं, जहां पर हम कुछ नौकरी करते हैं। Yes or no? Yes भी बड़ी ढीली है यार आपकी। Yes or no? Yes। तो क्या कर सकते हो आप? कुछ है जज्बा कि अगर सर हम मिल जाएं, सब लोगों की एक सोच आ जाए तो हम इस इंस्टीट्यूशंस को, इस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को नंबर 1 बना सकते हैं दिल्ली में। यस और नो? अगर आप नो कहते हो तो आप सेल्फ डाउट में हो, और सेल्फ डाउट में तो कभी नहीं रहना चाहिए। तो आप एक काम करिए, जो आप कह रहे हैं उसको हम मान के चलते हैं। आप अपने लेफ्ट राइट की ऐसे हाथ पकड़ लीजिए और हाथ उठा लीजिए। कम ऑन। यस, ये हुई ना बात। गुड गुड, वेरी गुड। आप हाथ पकड़ लीजिए और हाथ उठा लीजिए। देखिए कुछ लोग बहुत सोचते के लिए एक बार थोड़ा शरारती है बट जोश और जुनून है। गुड गुड, वेलकम अखिल, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। आजा आजा आजा। ये देख, ये अखिल मेरे साथ करेगा, हाथ पकड़ मेरा। यस यस यस, टुगेदर वी कैन डू इट। You are the backbone of पाएंगे। So do something good for your institution where you are studying. Good, Akhil, give it up. How many of you are interested to do something big in your life? How many of you are interested to do something big in your life? बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हाथ खड़ा करके रखिएगा। How many of you are going to do big in your life? देखिए आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। Biggest mistake in life you are doing it if you are interested. Listen very carefully. अभी तो interested हूँ कुछ बड़ा करने के लिए, you are the biggest. You are the biggest. Now listen carefully. मैं आज सबसे पूछूंगी, चलिए बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, पिक्चर देखने चलते हैं। सब लोग कहेंगे हाँ जी हम इंटरेस्टेड हैं, हम चलते हैं पिक्चर।
इंटरेस्टेड नहीं होना माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्टेड नहीं होना, कमिटेड होना, कमिटेड। दूसरे वो टूट सकता है, प्रॉमिस अपने आप से करो। अब मैं कहने जा रहा हूं ना, जो मैं विजुअलाइज बोलता हूं ना, मोटिवेशनल, 10,000 शब्दों के बाद एक लाइन निकलती है। जो 10,000 शब्द नहीं समझा सकते वो ये 4 लाइनें समझा देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनते रहिए। ना पूछो कि मेरी मंजिल, ना हारूंगा उम्र भर। अरे तुम थोड़ी बोलोगी हारूंगा, तुम हारूंगा, तुम तो हारूंगी बोलोगी ना। ना हारूंगा उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपने खुद से वादा किया है, ध्यान रखिएगा। ओके, और एक और बात बता देता हूं, बड़ी अच्छी बात बताने रहा हूं। नसीरुद्दीन शाह से मीडिया वालों ने पूछा कि कोई बात चल रही थी, तो उनके मुंह से ये निकल गया नसीरुद्दीन शाह से के मुंह से कि अमिताभ बच्चन डू नॉट हैव ए बिग कंट्रीब्यूशन इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। उनके मुंह से ये निकल गया। मीडिया वालों को क्या चाहिए, उनको तो मसाला चाहिए। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन शाह इतने बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन इतने बड़े एक्टर, इतनी बड़ी बात कह दी, अब तो बड़ी न्यूज बनेगी। वो फट से अमिताभ बच्चन के पास चले गए, बोले सर नसीरुद्दीन शाह सर ने तो आपके बारे में ऐसी बात कह दी है। अब रिएक्शन दे वर एक्सपेक्टिंग कि बड़ा जबरदस्त रिएक्शन होगा, पर वो कौन है, वो तो बिग बी है, अमिताभ बच्चन, और हर बात में जबरदस्त कुछ ना कुछ उनका तो है। तो उन्होंने बोला कि देखिए 2 बातें हैं। एक तो नसीरुद्दीन शाह बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, और अगर उन्होंने कुछ कहा है, चाहे मेरे बारे में ही कहा है, तो जरूर मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है। बजाय कि रिएक्ट करने के, कभी नहीं हमने उनको देखा, लड़ाई करने के कभी नहीं हमने उनको देखा, कोई नेगेटिव बात कहने के कभी नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं आज तक कोई स्टेटमेंट सुनी। अमिताभ बच्चन इज अमिताभ बच्चन, हाईली कमिटेड। इतनी 60-50 प्लस ईयर्स की सस्टेनेबिलिटी इन द इंडस्ट्री, इट इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आपको लगेगा यार 5 साल में ही मैं तो थक गया यार, 50 साल से ज्यादा बंदा हिट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिप्लाई। देखो सोच होती है, बड़े जो लोग होते हैं ना, उनकी सोच, उनकी अंदाज, उनकी बात में ही दम होता है, उनको ज्यादा बातें नहीं करनी होती। नेक्स्ट एग्जांपल इज विराट कोहली। मैं इनके इंटरव्यू काफी सुने, मैंने इनके कोच के वर्डिंग्स, कोच की बात इनकी बड़ी सुनी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इनकी बात सुनने को मिलती है। ही इज ए लेजेंड फॉर द यंगस्टर्स, ही इज ए रोल मॉडल फॉर यंगस्टर्स। इनकी लाइफ को अगर आप स्टडी करो तो आपको लगेगा यार अब मेरे को भी कोई बड़ी जिंदगी जीनी है, बड़ा काम करना है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, उस दिन हलचल शुरू हो जाएगी आपके दिमाग में। जब तक नहीं है तब तक नहीं है। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कई बार वर्ड्स आर नॉट इनफ। कमिटेड रहना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, द वे वी थिंक। योर एटीट्यूड इन लाइफ विल डिफाइन योर अल्टीट्यूड, कि आप कितना ऊपर उठेंगे जिंदगी में। आपकी सोच कैसी है, ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान से सुनिएगा। एक करेंसी नोट, करेंसी के नोट से किसी ने कहा तुम बहुत इतरा रहे हो, कड़क कड़क कर रहे हो, इतरा रहे हो, तुम कितना भी इतरा लो, रहोगे तो तुम कागज के टुकड़े ही ना, रहोगे तो तुम कागज के टुकड़े ही ना। इसका जवाब सुनने वाला था। सोच जब आती है ना इंसान की, उसको कहां से कहां ले जाती है। इसका जवाब सुनने वाला था, कहता हाँ मैं तुम्हारी बात सही है, मैं रहूंगा तो कागज का टुकड़ा ही। लेकिन मजे की बात यह है कि इस कागज के टुकड़े को आज तक किसी ने डस्टबिन में नहीं फेंका। See the reply, see the answer. एक आदमी नई कार लेके जा रहा होता है और देखता है चौराहे पे एक लड़का लिफ्ट लेने की कोशिश करता है, चाह रहा होता है, लिफ्ट लेना चाह रहा होता है। वो आदमी नई कार पे उसको रोक लेता है, कार को, और उस लड़के को बिठा लेता है। अब वो चल रही होती कार, वो लड़का साइड में बैठा होता है। वो आदमी उस लड़के से बोलता है कि बेटे तुम्हें पता है ये कार मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दी है, ये कार मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दी है। तो वो लड़का चुप हो जाता है। थोड़ी देर में वो पूछता कि मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोचो ना काश तुम्हारा भी कोई दोस्त हो जो तुम्हें ये कार, नई कार गिफ्ट में दे। कहता नहीं मैं ये नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूं काश
काश कोई ऐसा दिन आए कि मैं भी ऐसी कार अपने दोस्त को गिफ्ट करूं। Got the point? See the answer of the people who have a great big thinking. सोच बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। सोच को बड़ा करो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो। सुनो ध्यान से, जल गया घर मेरा, जल गया घर मेरा, बचा ही क्या था। जल गया घर मेरा, बचा ही क्या था, मैं बच गया, जला ही क्या था। You got it? That is the beauty of positive thinking. Attitude is everything. The way you start speaking, you will tell everything about yourself. Time is king. कितने लोग मानते हैं? Time is king. Everything is time. समय दिखता नहीं है पर दिखा बहुत कुछ देता है। You got it? Now listen carefully. ये टाइम होता है जब सांप सड़क पर दिखता है तो लोग उसको मारने को दौड़ते हैं। वही सांप जब शिव जी के गले पे होता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं। तालाब में जब पानी होता है तो मछलियां कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, और जब तालाब में पानी नहीं होता है तो वही कीड़े मकोड़े मछलियों को खाते हैं। That is time. You got it? तुम कुछ भी रख लो नाम इसका, तुम कुछ भी रख लो नाम इसका, जो होना है सो होता है। इस दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त सिकंदर होता है। Time is king. Time is everything. Remember time. बैठ जा बेटा, बैठ जा। Focus on goals, not obstacles. लक्ष्य निर्धारण करो और हिट हार्ड करो। देखिए, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। You got it? स्वामी विवेकानंद जी said, जागो, उठो और तब तक ना रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असीम प्रेम जी ने कहा है, अगर तुम्हारे लक्ष्य पे कोई हंसता नहीं है तो समझ लेना तुम्हारे गोल्स बहुत छोटे हैं। नेक्स्ट इज, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, इस धरती और आसमान में तुम्हें एक ही चीज नजर आनी चाहिए और वो होना चाहिए तुम्हारा लक्ष्य। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। You got it? Thank you very much. Last 10 minutes I am with you. Listen carefully. These two slides are the great slides of this program. Be grateful. Now I am going to tell you what is this gratefulness. Listen very carefully. हवाई जहाज को दौड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? रनवे। Yes or no? Listen very carefully. Runway of life is, I am repeating it. Runway of life is gratitude. रनवे है ये जिंदगी में जो भी कुछ होगा। प्लीज डोंट मेक नॉइज, प्लीज डोंट मेक नॉइज, सेटल डाउन। ओनली 5 minutes मोर, प्लीज सेटल डाउन। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये बहुत जिंदगी बदलने वाली चीज है, मैजिकल है जो मैं बताने जा रहा हूं, मैजिकल। वेयर पीपल आर स्ट्रक, runway of life is gratitude. Runway of life. जितना भी जिंदगी में तुम्हारे बदलाव आएगा, बड़ा बड़ा आएगा, मैजिकल चीजें होंगी जब आप ग्रेटिट्यूड की भावना में होगे। थैंक यू इज नॉट इनफ, एप्रिसिएशन इज नॉट इनफ, ऑलवेज बीइंग इन द स्टेट ऑफ दैट इज ग्रेटिट्यूड। यू गेटिंग मी और नॉट? कई पैरा तो नंगे फिरदे,
कई पैरां तो नंगे फिरदे सरते लभदे छावां, मैनू दाता ने इन्ना दिता क्यों ना मैं शुक्र मनावा। We need to express also the universe understand the language of gratitude। आपको 1000 चीजें दी, आप कुछ बोलते ही नहीं, चुप करके बैठे हुए हो। एक्सप्रेस, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू पेरेंट्स। आज हम जहां पर भी हैं, हजारों लोगों ने हमारी मदद करी है, हजारों लोगों ने मदद करी है। A word of thanks is very important from the heart. It is going to be magical in your life. Remember my words, it's going to be magical. I'm saying again and again. It is the law of universe. Be grateful, be thankful. Don't be so much busy. मैं busy हूँ, अरे सब कुछ यही रह जाएगा। Don't be that much busy. Please close your eyes. बहुत बड़ी बात एक्टिविटी में करवाने जा रहा हूं आपको, ये चीजें आपके काम आएंगी फ्यूचर में, कभी भी एक बार आपके दिमाग में आ गई तो। क्लोज योर आईज एंड से थैंक्स टू वन पर्सन जो एकदम याद आ रहा है आपको कि यार इसने मेरे लिए बड़ा कुछ किया है। कोई भी है, माँ बाप हैं, भगवान है, कॉलेज है, पेरेंट्स हैं, गुरु हैं, फ्रेंड है कोई। क्लोज योर आईज and think for a moment of that person and say him thank you from dil se, thank you from dil se, thank you from dil se। Do it, don't miss the opportunity, don't miss the opportunity। बातें बाद में भी हो जाएंगी, don't miss the opportunity। जो काम कर रहे हो उसको पूरे दिलो दिमाग से करिए। One single person say thank you from the heart। गुड जॉब डन। इसमें हंसने की बात नहीं है, इसमें दिल से थैंक यू कहने की बात है। जब हंसने की बारी आएगी तब हम हंसेंगे, सब लोग आने वाली है। थैंक यू वेरी मच। यू कैन ओपन योर आईज एंड ऑलवेज कीप डूइंग दिस एक्सरसाइज, क्योंकि जो लोग धन्यवाद नहीं कर सके उन्होंने जिंदगी में, आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स बट मेक इट ए प्रैक्टिस। दिस इज द लास्ट स्लाइड एंड मेरा कोई भी आज तक प्रोग्राम इंडिया या अब्रॉड में जितने भी हुए हैं, आज तक कोई भी प्रोग्राम इस स्लाइड के बिना मुझे लगता है वो अधूरा है। सो 3 minutes अगेन आई एम विद यू एंड बिलीव मी, वी डोंट नो, दिस इज नॉट इन अवर हैंड्स। मिलना और बिछड़ना हमारे हाथ में नहीं है। मुझे आपसे मिलना था, आपको मुझसे मिलना था। नेवर न्यू दिस थिंग। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी आफ्टर 28 years ऑफ माई प्रोफेशनल करियर। नहीं पता था वो भी। ओके, नाउ listen very carefully। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो लोग हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। You got it? That is the beauty of life। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मीन्स कुछ भी, always keep smiling, always keep laughing, always be happy। भगवान ने हमें भेजा है उदास होने के लिए नहीं भेजा है, खुश रहने के लिए भेजा है। कहते हैं जब आप खुश होते हैं तो आप भगवान से दुआ मांगते हैं, जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो भगवान आपके लिए दुआ मांगते हैं। You got the point? अब हमने खुशी हंसी की बात करी तो इसके ऊपर कुछ लाइनें हो जाए। वो कहाँ गया मेरा दोस्त आयुष? हो जाए आयुष? लिसनिंग केयरफुली। ग्रेट यार, ग्रेट, नाइस, नाइस, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बार पापा अपने बेटे को डांट रहे होते हैं। आयुष कितना बड़ा बेटा होता है। पापा अपने बेटे को डांटते हैं, हंस पड़ता है। हंसने की बात हो रही, पापा अपने बेटे को डांटते हैं, हंस पड़ता है। पापा अपने बेटे को डांटते हैं, हंस पड़ता है। पापा अपने बेटे को डांटते, इस बार जब हंसता है पापा को बहुत गुस्सा आता है, रख के एक चाटा लगाते हैं, कटाक। वो बेटा फिर हंस पड़ता है। पापा कहते हैं बदतमीज, बेशरम, मैं तुझे डांट रहा हूं, मैं तुझे मार रहा हूं, तू फिर भी हंस रहा है। कहता है पापा आपने ही तो मुझे समझाया है कि मुसीबत की घड़ियों में भी हंसते रहना चाहिए। You got it? So always keep smiling, always keep laughing. Believe me, it is need of the hour.
अहमदाबाद में एक प्रोग्राम हो रहा है हैप्पीनेस के ऊपर, एंड द फी इज ओनली 2.5 लाख रुपीज, 6 days. इट इज नीड ऑफ द आवर. देखने में सब नॉर्मल लगता है माय डियर फ्रेंड्स, बट यहां पर इतनी हलचल चल रही होती है, इतनी हलचल, अनबियरेबल हलचल चल रही होती है, एंड नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट. बहुत कम लोग उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. यहां पर इतनी हलचल चल रही है. नेक्स्ट इज, अब मैं आपको कुछ बड़ी जबरदस्त लाइनें मुझे याद आ रही हैं दोस्त, मैं सुना दूं? पक्का तुम कहते हो तो देख लो. अरे एक बार एक आदमी मंदिर में दारू पी के पड़ा होता है. क्या पड़ा होता है? मंदिर में दारू. गलत बात है ना. तो केयर टेकर जो होता है, वो पुजारी होता है, वो बोलता है मंदिर इतना बड़ा है और तू दारू पी के पड़ा है. मंदिर इतना बड़ा है और तू दारू पी के पड़ा है. अब वो आदमी जो दारू पी के पड़ा होता है वो बोलता है, वो क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से. बोलता है मंदिर इतना बड़ा है तो धरती पे क्यों पड़ा है? तो धरती इतनी बड़ी है, धरती इतनी बड़ी है तो शेषनाग के सिर पे क्यों पड़ी है? शेषनाग इतना बड़ा है, शेषनाग इतना बड़ा है तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा है? शिव जी इतने बड़े हैं, शिव जी इतने बड़े हैं तो पर्वत पे क्यों पड़े हैं? पर्वत इतना बड़ा है, पर्वत इतना बड़ा है तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा है? हनुमान जी इतने बड़े हैं, हनुमान जी इतने बड़े हैं तो सीता माता के चरणों में क्यों पड़े हैं? सीता माता इतनी बड़ी है, सीता माता इतनी बड़ी है तो लंका में क्यों पड़ी है? लंका इतनी बड़ी है, लंका इतनी बड़ी है तो भारत के नीचे क्यों पड़ी है? भारत इतना बड़ा है, भारत इतना बड़ा है तो फिर हिंदू मुसलमान के झगड़ों में क्यों पड़ा है? अब वो कहता है अरे मेरे भाई, मेरे बाप, तू ही बता फिर कौन बड़ा है? वो कहता है वही बड़ा है जो दारू पी के मंदिर में पड़ा है. Okay, so you cooperated a lot, you listened very carefully, you are enthusiastic participants, you have josh, junoon, passion in you, वो नजर आ रहा था, and you clapped so many times, thank you very much. But मेरा एक फर्ज है आपके लिए कि सिर्फ आपको मैं कह के जाऊं कि आप खुश रहिए, खुश रहिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है. मैं बहुत बड़ी चीज करने जा रहा हूं, बैठ जाइए 2 मिनट, you will miss it. और इसके लिए आप, मैं चाहूंगा फॉर नेक्स्ट 2 minutes मैडम, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ क्या करें, आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, जरा खड़े हो जाएं अपने. अब हम चेक करेंगे कि आप कितने खुश हैं. इज इट ओके? सो वील चेक इट आउट. आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, जबरदस्त फोटोग्राफ्स आएंगी. ओके रेडी? आप कितने खुश हैं चेक करने जा रहे हैं. इज इट ओके? मेरे साथ करिए. वेरी गुड, वेरी गुड. ये करिए. वेरी गुड, वेरी गुड. ये जोर से करिए. वेरी गुड, वेरी गुड. ये ओके. नाउ आप मेरे साथ हंसेंगे जैसे मैं हंसूंगा. लिसन केयरफुली. हा 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 फ्री फ्लो. पेट पकड़ के, ऐसे पेट पकड़ के. यार हंस के तो दिखा दीजिए जोर से. ओके नाउ दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड. कम ऑन. नेक्स्ट इज, आप मेरे साथ करिए. यस, कम ऑन, डू इट. कम ऑन, डू इट. कम ऑन, डू इट. डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. कम ऑन, डू इट. You have done a good job. You have done a great job.